فرمانی ناز کی طبیعت خراب ہے؟ کیا فرمانی ناز کو ورثی کی بیماری ہو گئی ہے؟ کیا فرمانی ناز کو اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ السلام علیکم، آداب میرے دوستو۔ میں ایک ویڈیو دیکھی اور میں دیکھ کر کے میں حیران رہ گئی۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے لیکن میں پھر بھی سوچی کہ میں ایک ویڈیو بناؤں۔ میں 2 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی انسٹاگرام پر، میں دیکھ کر کے حیران رہ گئی۔ وہ ویڈیو تھی فرمانی ناز کی۔ میری آواز تو نہیں کھل رہی ہے لیکن پھر بھی میں سوچی کہ میں اپنی رائے آپ کے پاس رکھوں۔ مجھے کیا محسوس ہوا، میں کتنا ڈر گئی فرمانی ناز کو دیکھ کر کے۔ میں سوچی کہ میں آپ سب کے سامنے میں اپنی فیلنگ رکھوں۔ جب میں وہ ویڈیو دیکھ کر کے میں پوری رات، اللہ جانتا ہوگا، پوری رات میں بستر پہ سو نہیں پائی۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی طاری تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اور میں کیوں ڈر رہی تھی؟ میں ڈر اس وجہ سے رہی تھی کہ یہ فرمانی ناز کی حالات دیکھ کر کے، اس کی شکل دیکھ کر کے، جو کہ اتنی پیاری تھی، اتنی خوبصورت تھی، میں اتنا ڈر گئی۔ میں اللہ سے معافی مانگنے لگی اور توبہ کرنے لگی، یا اللہ میرے سے جو غلطی ہوئی، گناہ ہوئی، مجھے معاف کرنا، کیونکہ مجھے اس کی شکل دیکھ کے ڈر لگ گئی۔ اب اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیوں اس کی شکل بگڑ رہی ہے، کون سی بیماری ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن شکل پہ کوئی رونق نہیں ہے، نہ خوبصورتی جو کہ اتنی اچھی لگتی تھی دیکھنے میں۔ بھلے ہی پریشان حال تھی لیکن اس کے شکل پہ ایک نور تھا، ایک خوبصورتی تھا، وہ سارا ختم ہو چکا۔ اور ہر عورت چاہتی ہے خوبصورت دکھے، اس کے شکل پہ نور ہو، وہ اچھی رہے، تندرست رہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو میں فرمانی ناز کی یہ حالات دیکھ کر کے میں ڈر گئی تھی۔ فرمانی ناز جو کہ گانا گاتی تھی اور گانا گاتے ہوئے وہ بھجن بھی گائی، بھجن گا کر کے لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ گانا گا کر کے بھی اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی، آواز کے ساتھ اللہ نے اسے طرز، جو راگ ہوتا ہے نا، سر، وہ پکڑنے کی قوت بھی دی، جس پہ 4 چاند لگ گیا فرمانی ناز کا۔ اور فرمانی ناز نعت پڑھنے لگی، گانا گانے لگی، ساتھ میں بھجن بھی پڑھنے لگی۔ بھجن پڑھی تو جس کی وجہ سے مسلمان علماء جو ہے بولے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے بولی فرمانی ناز کہ ہمارے جب برے حالات تھے تو کوئی نہیں آیا، اور جب میرے اچھے حالات ہو رہے ہیں، میں یعنی اس کے کہنے کا مطلب کہ میں پیسے کما رہی ہوں، میں ترقی میں جا رہی ہوں، تو سب آ رہے ہیں مجھے روکنے کے لیے۔ مسلمان علماء، مسلمان سب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تھوڑی بہت ویڈیو بنی، کچھ لوگوں نے آواز اٹھائے ہوں گے، میں اتنا تو نہیں دیکھی۔ اس کے بعد خاموش ہو گئی، وہ کام کرنے لگی، اور کام کرتے ہوئے وہ بہت ہی ترقی کری، بہت اونچائی پہ گئی، لوگوں نے بہت پیار دیا، بہت عزت دیے، بہت خوبصورت لگنے لگی، بہت خوبصورت لگتی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن جب اس رات میں ویڈیو دیکھی اس کی تو میں حیران رہ گئی، مجھے بہت ڈر لگنے لگا اس کی وہ ویڈیو دیکھ کر کے۔ میں کامنٹ میں گئی، اس کے کامنٹ میں دیکھنے کی، کامنٹ میں لوگوں نے کیا کہا ہے، تو کسی نے کہا ہے فرمانی تم کو نا اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے، تو بھجن گائی ہے تو اس وجہ سے تیرے ساتھ یہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے۔ فرمانی ناز نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اسلام میں نہیں ہوں، ہاں وہ بولی کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں یہ سائٹ سے، جو کہ اسلام میں واقعی یہ جائز نہیں ہے۔ تعریف صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور بھجن میں کس کی تعریف، میں وہ بھجن سنی بھی نہیں ہوں، لیکن ہلکا پھلکا سنی ہوں تو میں غور نہیں کری ہوں، کیونکہ جب میں گزرتی رہتی ہوں کہیں کہیں سے، کبھی بچوں کو اسکول لے کر کے آتی ہوں، اسکول سے لے کر کے آتی ہوں، تو میں گزری تو آواز سنی کسی کے گھر میں فرمانی ناز کی آواز کے بھجن چل رہے ہیں، یہ سب میں سنا کرتی تھی، لیکن میں ان آواز پر غور نہیں کرتی تھی، اس لفظ پہ غور نہیں کرتی تھی، کیا گا رہی ہے، نہیں گا رہی ہے۔ خیر، ہمارے میں دعا ہوتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہم کسی زندہ انسانوں کی تعریف کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی عادت ہے تمہاری، ترقی کر رہے ہیں، اللہ کا اس وقت نام لینا چاہیے، لیکن بولتے ہیں نا کہ واہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے اتنا ترقی کیا، اس نے ایسا کیا، اس کی تعریف کرتے، لیکن حقیقت میں تعریف کے قابل صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی تعریف کے قابل ہے، جو اللہ اس کو اس مقام تک پہنچاتا ہے۔
कोई कैसे अल्लाह से इनकार कर सकता है, ये मैं कभी कभी सोच करके मैं हैरान रह जाती हूँ। अल्लाह की नेमत देखती हूँ हर तरफ। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर हम परेशान हैं, दुनिया में कौन नहीं परेशान रहा, जब से ये दुनिया बनी हर कोई परेशान रहा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मतियों के लिए परेशान रहते थे, उनको लोगों ने कितना परेशान किए। हम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी उठाए, बहुत परेशानी उठाए, सारे अंबिया परेशानी उठाए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरा कदम उठा लें। सबसे बड़ी परेशानी मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, तो मैं रो देती हूँ। हमारे जो सबसे मेरे माँ बाप तो बहुत अफजल हैं, लेकिन ये दुनिया में सबसे पहले इंसान जो आए हैं आदम अलैहिस्सलाम, जो कि सारे इंसानों के माँ बाप है आदम अलैहिस्सलाम, और माँ हव्वा जो कि जन्नत से आई थी। जन्नत से अल्लाह तबारुक ताला ने सिर्फ एक गलती की वजह से अल्लाह तबारुक ताला ने दुनिया में फेंक दिए थे, और दुनिया में आ गए दोनों दो जगह। अब सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों को ये जन्नत से आकर के दुनिया में फेंक दिए, कितनी मुसीबतें हुई होंगी। उस वक्त कोई आदमी नहीं दुनिया में, कितनी तकलीफ हुई होगी, अकेले कितना रोए, कितना गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। क्या उन लोगों ने शैतान का सहारा लिए? कोई उस वक्त ये सब नहीं था, लेकिन शैतान तो था ना उस वक्त, लेकिन नहीं ना, उस वक्त सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते रहे दोनों। क्या उससे ज़्यादा हम परेशानी उठाते हैं? क्या उससे ज़्यादा हम तकलीफ़ उठाते हैं? हम तकलीफ़ उठाते हैं तो हम खुद ही सोचते हैं कि हम खुद अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि हमारी तकलीफ़ है। हाँ, होता है तकलीफ़, हम इंसान हैं, तकलीफ़ से कौन नहीं गुज़रता है, हर कोई गुज़रता है अपने अपने तरीके से। सबको अपना अपना तरीका, अलग अलग तरीका तकलीफ़ है। ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों मिलना ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोई गलत कदम उठा लेंगे, हम ऐसा कदम उठाएंगे जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो हमारा ये हाल हो जाए कि हमारी शक्ल बिगड़ जाए, हमारी सेहत बिगड़ जाए। हम इतने सारे प्यार मोहब्बत दुनिया से ले चुके हैं, इतनी दौलत कमा चुके हैं, और एक झटके में कोई ऐसी बीमारी आई और उस बीमारी में सब कुछ फना हो गया, सारी दौलत फना हो गई, सब कुछ फना हो जाता है। और कुछ लोग मेरी इस बातों से ये भी कहेंगे कि अच्छे अमाल करने से भी कभी परेशानियां आती हैं। हाँ, आती हैं मेरे दोस्त, अच्छे अमाल करने के बाद भी आजमाइश आती है, उसमें भी जाता है, लेकिन अल्लाह ताला शक्ल नहीं बिगाड़ता है। अल्लाह ताला उसके चेहरे पे और चार चांद लगा देता है, एक नूर आ जाता है, एक अलग ही तरह की कॉन्फिडेंस भी आता है, सब्र करने की कुव्वत आती है। और फिर उसके बाद जिंदगी अगर लंबी रही तो ज़रूर वापस लौट आता है। अगर ज़िंदगी कम है तो अल्लाह यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर देगा। फिर उसके बच्चों तक के लिए अच्छा रहता है। जिन माँ बाप के आमाल अच्छे होते हैं उनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी होती है। हमने अपनी नज़रों से देखा है, जो माँ बाप अच्छे से अल्लाह पर यकीन रखते हैं, सब्र रखते हैं ना, उनके बच्चों को मैं देखी हूँ माँ बाप के गुजरने के बाद खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं। तो मेरे दोस्तों, कोशिश कीजिए, अगर मुसीबत आए, तकलीफ़ आए तो सिर्फ अल्लाह को पकड़िए। आप काम कीजिए, पैसे कमाइए, लेकिन इस तरह से पैसे ना कमाइए कि जिसमें अल्लाह की तरफ से लानत आए और हमारे ऊपर उलमा के फतवा लगे। अगर इत्तफाक से फतवा लगे तो माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने के बाद जो हम काम कर रहे हैं, गलत काम है हमारा, उससे हम तौबा करें और अल्लाह से तौबा करें। क्या जाता है माफ़ी मांग लेने में, क्या तौबा करने में क्या चला जाता है? कुछ नहीं जाएगा, हमारी इज्जत नहीं घट जाएगी। और अल्लाह जब देने पे आएगा तो दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो हमें रोक पाएगी ना देने के लिए? अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही लेता है। सारी कुव्वत अल्लाह के पास में है और किसी के पास में नहीं है। धोखे में है इंसान, धोखे में है कि नहीं हम ऐसे काम करेंगे, नहीं हम इस तरह से करेंगे तो हमको आएगा। नहीं, आएगा लेकिन जाएगा भी आपका वैसे ही। इसीलिए आपको लेट लगता है तो इसका मतलब कि और अच्छा है, और अगर ना मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम कोशिश करने के बावजूद भी अगर हमें ना मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये दुनिया है, कितना क्या, ये जन्नत तो नहीं है कि हम हमेशा रहेंगे। ये दुनिया है, हमको चले जाना है। सोचिए कि हम कितने साल रहेंगे।
नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में एक औरत आई थी, नूह अलैहिस्सलाम से पूछी थी कि हमारा एक बच्चा है, इंतकाल कर गया है, रो रही थी वो बूढ़ी औरत। तो रोते हुए बोल रही थी कि अभी वो दुनिया भी नहीं देखा और वो दुनिया से चला गया। शायद वो 500 साल या कितना सौ साल याद नहीं, साल याद नहीं, कितना 100 साल तक का था, बस दुनिया कुछ नहीं देखा। तो नूह अलैहिस्सलाम हंसने लगे और बोले कि एक वक्त ऐसा आएगा, एक नबी ऐसे आएंगे, उनकी उम्मत की उम्र सिर्फ 50 साल 60 साल की होगी। वो उस टाइम के इंसान इतना ही उम्र में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है बना लेंगे, बहुत तरक्की करेंगे और इतना ही उम्र में सब कुछ करके दुनिया से चले जाएंगे। तो अब सोचिए वो बूढ़ी औरत क्या जवाब दी। मैं वो जवाब सुन कर के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बूढ़ी औरत बोली कि मैं अगर इतना कम उम्र हो तो मैं तो एक पेड़ के पास खड़ी खड़ी पूरा वक्त वहीं पे गुजार दूं, एक पेड़ के पास खड़ी खड़ी पूरा वक्त वहीं गुजार दूं। और हम 40 साल 50 साल 60 साल के लिए हम इस तरह से परेशानी आती है तो हम इस तरह से बह जाते हैं। हाँ, रोना हमारी फितरत में, हम इंसान हैं और हम कमज़ोर हैं तो हम अल्लाह से मदद मांगे, और इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। अगर इतने कमज़ोर होते तो अल्लाह हमें इंसान ना बनाता, हमारे लिए अल्लाह तबारक ताला कुरान शरीफ ना देता। अपनी कुरान शरीफ दिया हमें, अपना कलाम दिया अल्लाह तबारक ताला, ताकि इससे मजबूती लो, इससे अपने लिए फ़ायदा लो। तो ये कुरान हमारे लिए फ़ायदा है, अल्लाह का कलाम। उससे हम सब्र सीखते हैं, उससे हम जीना सीखते हैं, उससे हमें अकल आती है। तो ये सब सोचना चाहिए मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। आपको किसी को भी अगर परेशानी आती है ना, तो मेरे दोस्तों दुनिया में नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चलेगी ज़्यादा दिन, आपको फिर मुसीबत झेलना पड़ेगा। एक बार सोच लो कि क्या दुनिया की चंद मुसीबत के लिए आप ऐसे कर रहे हो, और आखिरत की जब वो मुसीबत आएगी, वो परेशानी आएगी, तो कहाँ भागोगे? कोई रास्ता मिलेगा आपको भागने का? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मिलेगा रास्ता, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप कोशिश करो कि वो रास्ता पकड़ो जिसमें हम हमेशा के लिए जहन्नम में न रहें, हमेशा के लिए आग में न जलें, हमेशा के लिए अजाब में न रहें। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह से मनमुटाव ना हो। अल्लाह दुनिया बनाया है, अल्लाह ही की मलकियत है, सब कुछ अल्लाह का है। अल्लाह हमें जिस हाल में रखे, हम अल्लाह से मदद मांगते रहें, लेकिन हम अल्लाह से बदगुमानी ना करें। अगर हमें अच्छे अमाल करने के बाद भी अगर हमें जहन्नम मिल रहा है तो सर आँखों पे अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह की हम मलकियत है। अल्लाह हमें जन्नत में डाले या जहन्नम में, लेकिन अल्लाह से बदगुमानी नहीं। अल्लाह रहमान है, हम अगर अच्छे अमाल करेंगे ना तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमें जहन्नम में डालेगा। लेकिन मैं कहने के लिए बोल रही हूँ कि अगर अच्छे अमाल करने के बावजूद भी हमारा सब कुछ उलट पलट हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कि हाँ हम अल्लाह से बदगुमान हो जाए। हम अल्लाह से बदगुमान होकर जाएंगे कहाँ? कोई रास्ता नहीं है, किधर जाएं हम? कोई रास्ता नहीं है, अल्लाह से भाग नहीं सकते हैं। अल्लाह बादशाह है, बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो अगर मैं बोलूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस अल्लाह की लाठी को मजबूती से पकड़े रहें। अल्लाह की लाठी है कुरान, अल्लाह का कलाम। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं यही कहूँगी, फरमानी नाज के बारे में मैं बुरा नहीं सोचती हूँ। जो भी अल्लाह से यानी कि कुछ गलत किया है, उन सब के चेहरे से अल्लाह ने नूर छीन लिया है, उन सब का बुरा हुआ है। लेकिन फरमानी नाज ने, मुझे ऐसा लगा कि ये फरमानी नाज अल्लाह के ना होने का इनकार नहीं करी है, लेकिन गलत करी है। और फरमानी नाज शायद अल्लाह से माफ़ी मांगेगी तो अल्लाह माफ़ ज़रूर कर देगा। और मेरी वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ये फरमानी नाज तक पहुंच जाए और अल्लाह उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और फरमानी नाज की जो शक्ल थी खूबसूरत, अल्लाह वो शक्ल फिर से लौटा दे और अल्लाह हिदायत दे तौबा करने की और उस तरह की वीडियो ना बनाने की।
اور اللہ فرمانی ناز کو خوب ترقی دے اور اس بیماری سے نجات دلائے جس میں وہ مبتلا ہے۔ السلام علیکم، آداب میرے دوستوں۔